ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایسا کبھی مت سوچیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سن نہیں رہے ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو نہیں دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آپ مانگتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی کسی بھی بات پر انکار تو نہیں کیا ہے نا، یا آپ کی صداؤں کو رد تو نہیں کیا ہے، یا آپ کی دعاؤں کو سنبھال کر نہ رکھا ہو، تو ایسی کوئی بات تو نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ آپ دعا کیجئے، چاہے 5 وقت کی نماز میں کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہر لمحے میں سن رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت میں آپ اپنا سر زمین پر رکھتے ہیں، آپ کی دعائیں تو تبھی قبول ہو جاتی ہیں جب آپ تہجد کے وقت میں رات کی تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ یقین کیجئے آپ کی پکار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی پکار سے پہلے بھی سن چکے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا کی توفیق ہی اسی لیے دی ہے کہ آپ بار بار مانگیے اور بے انتہا مانگیے۔ ابھی بھی شاید صبر کے پہلے درجے پر آپ ہوں گے، لیکن ابھی بھی جو ہے آپ کو دعا کی توفیق ملی ہوئی ہے نا۔ آپ جو ہے صبر پر یقین رکھیے اور یقین پر توکل رکھیے، اور توکل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے جائیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزات کرنے والے ہیں۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کے ذہن میں وسوسے اور خیالات آئیں اور شکوے جاری ہو جائیں، تو پھر آپ یہ بات سوچ لیجئے گا کہ آپ نے صبر کرنا ہے اور اللہ پاک پر توکل کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو آپ بس صبر کیجئے اور توکل کے ساتھ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے، کیونکہ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا آپ مانگ رہے ہیں، اگر وہ آپ سے دور بھی چلی گئی ہے تو یہی دعا جو ہے اس کو بہترین کر کر آپ کی زندگی میں واپس لے آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی دعاؤں کو رد نہیں کرتے ہیں، پر صحیح وقت آنے پر آپ کو عطا ضرور کرتے ہیں۔ اور یہ جو صحیح وقت آتا ہے وہ اسی دعا سے تو ہی آئے گا جب آپ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں گے اور اپنے آپ کو وسوسے اور خیالات سے خالی رکھیں گے۔ اگر لوگوں کے رویے سے آپ ٹوٹ چکے ہیں، آپ کا ٹوٹا ہوا دل ہے، یقین جانیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر کر اپنے معاملات کو، دعا کو جاری رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر حالات پر اللہ پاک کی رضا کو شامل کر لیجئے اور اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کیسے خوبصورت معجزات کریں گے۔ دعائیں تو ہر پریشانی مشکلات کو بھی ٹال دیتی ہیں۔ جب آزمائش آتی ہے تو اس کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ہی آپ کے لیے سوچا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندگی کے آخری لمحوں تک مانگتے رہیں، کیونکہ یہ جو مانگنے کی توفیق ملتی ہے یہ بہت ہی پیاری توفیق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آسانیاں فرمانے والے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سچی ہے اور پرخلوص ہے، اور بے انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ بس آپ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ معجزات کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ناممکن کہانی کو مکمل کر دینا ہے، اور پیارا اور خوبصورت سا معجزہ آپ کی زندگی میں بھی کر دینا ہے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج کی جو بہت ہی پیاری سی 2 میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف درود ابراہیم، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف یا ودودو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ان کے لیے معجزات کیے ہیں اور دعائیں قبول کی ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ضرور معجزات کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ
शेयर करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आप ही उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हसनैन भी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। ज़ाकल्लाह मेरी बहन, आमीन सुम्मा आमीन। और ये आगे लिखती हैं कि आप ही मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मैं किसी को अपनी दुआ में इतना मांग रही हूँ, इतना मांग रही हूँ और इतना मांग रही हूँ, पर आप ही फिर भी एक भी पॉजिटिव साइन जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। दुआ कबूल हो जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ। मैं आपके मिरेकल स्टोरीज को देखती हूँ और उन्हें अपनी डेली लाइफ में शामिल भी किया है। जो कुछ आप बताती हैं पढ़ने के लिए वीडियोस में, वो सब कुछ भी मैं पढ़ रही हूँ। मुझे कुछ बताएं कि मैं रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में क्या शामिल करूँ जिससे मेरी दुआएं कबूल हो जाएं। प्लीज़ मेरे क्वेश्चन को अपनी वीडियो में शामिल करिएगा, शायद इससे आपकी प्यारियों की भी हेल्प हो सके। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारी बहन देखिए, पहला साइन तो अल्लाह पाक ने आपको ये दिया है कि आपको दुआ मांगने की तौफीक दी है। क्योंकि देखिए दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लोगों में से है ना जिनको अल्लाह पाक ने चुना है दुआ के लिए। सबसे पहला साइन ये हो गया, आपको दुआ मांगने की तौफीक मिली हुई है, ठीक हो गया। और सेकंड साइन आपको मैं अब ये बताऊं कि दुआ के साथ साथ आपकी ज़बान जो है वो ही दुआ मांग रही है जो अल्लाह पाक चाहते हैं कि आपकी ज़बान से वो लफ्ज़ निकले। आप किसी के लिए दुआ कर रही हैं, ये भी एक साइन हो गया। और थर्ड जो साइन है, आप ये देखें कि अल्लाह पाक ने चाहा है कि आज आप मेरे से बात कर रही हैं और मैं आपको इस चीज़ का जवाब दे रही हूँ और मैं आपको ये हिम्मत देने की कोशिश कर रही हूँ कि इतने सारे जो साइंस हैं आप देखें तो सही, आप गौर तो करें। हम ऐसा होता है कि हम उस चीज़ की तरफ देख रहे होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जो हमें नज़र आ रही होती है हम उन चीज़ों को तो देख ही नहीं रहे होते। तो मेरी प्यारी बहन, ये जो दुआ मांगने की तौफीक अल्लाह पाक ने आपको दी है ना, ये सबसे बड़ा साइन है आपके लिए, जो आपकी दुआ ने कबूल होना ही होना है। और मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक ने कहीं पर कहा है कि आपकी दुआएं रद्द होंगी या आपकी दुआएं मैं नहीं कबूल करूंगा। अल्लाह सुब्हान व तआला तो फरमाते हैं कि तुम मुझसे मांगो, किसी शिर्क में मुब्तला ना होना, किसी गुमराही में मुब्तला ना होना, मैंने तुम्हें अता करना है, तुम मुझसे मांगो। तो बस फिर यहाँ पर आकर सारी बात का एंड है। आप अल्लाह पाक से मांगिए और दुआओं को जारी रखिए। हाँ, ये भी तो एक साइन है आपके पास कि आप जो मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ मैं, उनमें जो कुछ बताया जा रहा है वो भी आप अल्लाह पाक के हुक्म से ही पढ़ रही हैं। अल्लाह पाक ने चाह है तो सब कुछ हो रहा है मेरी प्यारी बहन। अल्लाह पाक की चाहत के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। सो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आप जो दुआ कर रही हैं वो अल्लाह पाक की चाहत के बगैर कर रही हैं। अल्लाह पाक देखे ना कितने प्यारे प्यारे साइंस दे रहे हैं, आप नहीं देख रही हैं तो ये और बात है। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बताया है। आई होप जो आपका क्वेश्चन ये वाला था ना साइंस से रिलेटेड, वो तो क्लियर हो गया होगा कि अल्लाह पाक आपको सुन भी रहे हैं और अल्लाह पाक साथ साथ आपको हल भी अता फरमा रहे हैं और अल्लाह पाक आपको तौफीक भी दे रहे हैं कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ो। और कुरान पाक से रिलेटेड ही आप पढ़ रही हैं। अल्लाह पाक के कलाम में तो वैसे ही बरकत है, शिफा ही शिफा है। और अल्लाह सुब्हान व तआला तो ज़रूर हमारी दुआओं को सुनते हैं। मेरी प्यारी बहनों, परेशान मत हुआ करो, अल्लाह पाक से मांगती रहो, मांगती रहो। देखो ये बड़ी खूबसूरत तौफीक है जो हमें दुआ की मिलती है। और आपने कहा कि मैं बार बार मांग रही हूँ, तो आप बार बार मांगे ना, आप क्यों थक गई हैं? आप परेशान मत हो, अल्लाह पाक तो नहीं थके ना। अल्लाह पाक तो चाहते हैं कि आप मांगो, अल्लाह पाक चाहते हैं कि मेरी प्यारी शहजादी आप मांगे अल्लाह पाक से। तो बस फिर आप मांगे, आपका काम है मांगना और अल्लाह सुब्हान व तआला ने बेहतरीन कर कर आपको अता करना है। और आगे जो आपने पूछा कि आपको मैं क्या पढ़ने के लिए बताऊं, तो मेरी प्यारी बहन, मैं आपको हमेशा सबको बल्कि यही कहती हूँ कि 5 वक्त की नमाज जो है ना, उससे बेहतरीन वजीफा है। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो और समझ कर पढ़ते हो, और ख़ास तौर पर जो आप नमाज में पढ़ रहे हो उसका मायने क्या है वो आप समझ कर पढ़ते हो ना, तो बस फिर उससे बड़ी क्या बात होगी। नमाज को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करो, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ो, दरूद इब्राहीम पढ़ो, और डेली रूटीन में जिस तरीके से इस्तगफार सबसे बेहतरीन है आप वो पढ़ो, दरूद इब्राहीम पढ़ो, और जो कुछ भी आप पढ़ सकती हो आप पढ़ो। अल्लाह पाक ने आपको तौफीक अता फरमाई है और अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बस आप जो पढ़ रही हैं वो पढ़ती रहें, दुआ कीजिए। जब दुआ की तौफीक मिली हुई है तो अल्लाह पाक बस कबूल फरमाने ही वाले हैं और इंशाल्लाह अल्लाह पाक देखिएगा आपके लिए बहुत बहुत खूबसूरत मौजिज़ा करेंगे। मेरी प्यारियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, जो जो लोग मुझे सुनते हैं सबके लिए बहुत प्यारे प्यारे मौजिज़ात होंगे। बस अब परेशान नहीं होना आपने, ठीक हो गया ना। अल्लाह पाक करम फरमाए इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। पहली जो मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहीम, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम। आप ही आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सब पर ख़ास करम फरमाए और सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही मैं आपसे एक मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि दरूद इब्राहीम पढ़ने से अल्लाह पाक ने कुछ ही मिनटों में जो है मेरी दुआ को कबूल
قبول کر لیا۔ الحمدللہ آپ ہی میں پہلے نماز کی پابند نہیں تھی، اللہ پاک نے ایک آزمائش میں ڈال کر مجھے اپنے قریب کر لیا، اور بس پھر آپ ہی اس آزمائش نے مجھے اللہ پاک کے قریب کر دیا۔ اللہ پاک نے آپ ہی میرے لیے ایک پیارا سا چھوٹا سا میریکل کیا ہے جو کہ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ہی میں ابھی BSc فائنل ایئر میں ہوں۔ میں نے 2022 میں ایک نرسنگ کا فارم جو ہے وہ فل کیا تھا، جس کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ میں نے دسمبر میں اٹینڈ کی تھی۔ تو پھر آپ ہی ایسا تھا، جو کورس میں نے سوچا تھا اس میں مجھے گورنمنٹ سیٹ نہیں ملی تھی، لیکن 6 دنوں بعد میں ایک اور کاؤنسلنگ کورس میں ایڈمیشن لیتی ہوں، اور الحمدللہ اس میں مجھے گورنمنٹ سیٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے، وہ اپنی ڈسٹرکٹ میں ہی ہے۔ جو ہے اللہ پاک نے مجھے ایک لڑکی سے ملوایا جو کہ اب میرے کانٹیکٹ میں ہے۔ مجھے ایڈمیشن کا پتہ نہیں تھا، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کسی بھی بارے میں مجھے نالج نہیں تھی۔ اب تک ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی، پھر میں نے اسی لڑکی کو میسج کیا، اس نے مجھے جو ہے رات میں جا کر رپلائی کیا اور ایڈمیشن کے بارے میں ڈیٹیلز بتائیں۔ میں نے سوچا شاید میرے کالج میں الگ ڈیٹ ہوگی، میں اپنی گریجویشن کی کلاس کے لیے اپنے کالج میں چلی گئی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں کالج جاتی ہوں تو وہاں پر جو ہے میری کلاس میٹ تھی، اس نے میرے سے پوچھا کہ تم نے جو ہے ایڈمیشن کے لیے فارم فل کر دیا ہے، اور تم نے ایڈمیشن کی جو ڈیٹ تھی تمہیں پتا ہے آج لاسٹ ڈیٹ تھی، جلدی ارینجمنٹ کیسے ہو سکتا تھا۔ زیادہ پریشان اور پینک ہو گئی تھی اس وقت میں کہ میں کالج سے باہر جانا چاہ رہی تھی، مجھے جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ میں نے جو پرنسپل تھے انہوں نے سختی سے مجھے ڈانٹ دیا۔ پھر سب سے بڑا میریکل میری زندگی میں ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میں نے اس وقت میں آپ ہی درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا۔ مشکل وقت میں اتنی زیادہ پینک ہو چکی تھی کہ میں درود ابراہیم پڑھتی جا رہی تھی۔ ایک سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں، میں نے ان کو سب بتایا اور انہوں نے مجھے پرمیشن دلوا دی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ مجھے ایڈمیشن پروسیس کے لیے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں نے اس کالج کا پتہ کیا اور درود ابراہیم پڑھتے پڑھتے ساتھ اس لڑکی سے میں ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھتی جا رہی تھی۔ میں نے بہت ہی مشکل کے ساتھ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بنایا اور ابو کو کال کی۔ ابو ناراض ہو گئے کہ تم نے لاسٹ ٹائم پر یہ سب کچھ بتا رہی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کتنا مشکل ہے۔ خیر آپ ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ آپ ہی پیسوں کا ارینجمنٹ بھی نہیں ہو پا رہا تھا، اور میں اتنی شدید رو رہی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن میری زبان پر صرف اور صرف درود ابراہیم ہی تھا۔ میں درود ابراہیم اس وقت میں پڑھتی جا رہی تھی تو وہیں پر آپ ہی روتے روتے ہی میرے ابو کی کال آتی ہے، اور ابو نے بولا کہ پیسوں کا جو ارینجمنٹ ہے وہ ہو گیا ہے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ جس لسٹ میں میرا نام آیا ہوا تھا مجھے اس لسٹ کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ ایسا تھا کہ کچھ قریبی لوگوں کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا، مجھے میری لسٹ میں اپنا نام نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اب ابھی جیسے ہی میں فوٹو سٹیٹ کروانے کے لیے اس شاپ پر گئی ہوں، مجھے لسٹ میں اپنا نام نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ اس وقت میں پریشان ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، اب کیسے ہوگا اس دوران سب کچھ۔ خیر آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جا رہی تھی۔ اس پینک سچویشن میں میرے پاس اللہ پاک نے 2 لڑکیوں کو بھیجا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے نرسنگ کے ایڈمیشن کروانے کے لیے آئی ہیں، PDF فائل میں میرا نام نہیں مل رہا، پلیز میری ہیلپ کریں، مجھے پروسیس سمجھا دیں۔ ابو کو جو ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بھیج دیا، خود باقی ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ بنوا رہی تھی۔ آپ ہی ٹائم بہت کم رہ گیا تھا میرے پاس، اس وقت میں شیور ہو رہے تھی کہ کیا ہوگا، آج لاسٹ ڈیٹ ہے، اگر کچھ نہ ہو پایا۔ اب آپ ہی میں روتی بھی جا رہی تھی، درود ابراہیم بھی پڑھتی جا رہی تھی، اور اب آپ ہی ایسا تھا کہ میری فائل جو ہے وہ ریڈی نہیں ہو پائی اس وقت تک۔ وہاں پر کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے گئے ہیں تو ابو کو وہاں پر سٹیمپ ہی نہیں ملی۔ اب ایک اور پریشانی یہ آگئی کہ سٹیمپ جو مل نہیں رہی تھی۔ ابو نے مجھے کہا کہ تم ہمت رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں شاپ کے باہر بہت زیادہ رونے لگ گئی اور اندر ہی اندر یہ سوچ رہی تھی کہ میرا جو فیوچر ہے وہ ختم ہو گیا ہے، مجھے اپنی کوئی بھی آگے منزل اور کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اب اس تھوڑے سے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، بس آپ ہی میں نے درود ابراہیم کہہ لیں کہ اس حد تک پڑھا نہیں ہے کہ میں نے اس پریشانی کے وقت میں اور اس دن میں کتنی مرتبہ درود ابراہیم پڑھا ہوگا۔ اس سچویشن میں میرے دل میں ایک خیال یہ بھی آیا جو کہ بہت ہی پازیٹیو سائن تھا کہ اللہ پاک نے جب یہاں تک پہنچا دیا ہے تو اللہ پاک ایڈمیشن بھی کروا دیں گے۔ اب آپ ہی میں نے ابو کو بولا کہ ایک جو آفیسر ہیں ان کے پاس جاتے ہیں جو کہ آپ ہی کہہ لیں کہ سٹیمپ لگا سکتے تھے۔ اس وقت میں آپ ہی تقریباً جو ہے 2:15 کا ٹائم ہو چکا تھا، اور اب آپ ہی ایسا تھا کہ ہماری آخری امید یہی تھی کہ ہم ان کے پاس جائیں، سٹیمپ لگوا لیں۔ کہ ایک اور آپشن ہمیں اس وقت میں یاد آیا کہ ایفیڈیوٹ جو ہے ابو نے کہا کہ ہم نکلوا لیتے ہیں۔ کہ جب میں سیکریٹریٹ میں گئی تو وہاں پر انہوں نے آگے سے ہمیں کورٹ میں بھیج دیا، تو آپ ہی 2:45 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ کورٹ گئی، ادھر لوگ بولتے ہیں کہ آپ لیٹ ہو گئی ہیں کیونکہ ہمیں ابھی بینک بھی جانا ہے، ادھر پیسے سبمٹ کروانے تھے۔ تو پھر آپ ہی ایسا تھا کہ ڈرافٹ بنانا تھا جس کو ٹائم لگنا تھا، ادھر سے ہی میں جلدی جلدی جو ہے بینک میں گئی۔ یہ سارے معاملات اللہ پاک ہی چلاتے جا رہے تھے، جیسے ہی ایک دروازہ بند ہوتا تھا تو اگلی بات ہمارے ذہن میں ڈال دیتے تھے، اور پھر آپ ہی ایسا
ऐसा हुआ, वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे कोर्ट में, उन्होंने हमें कहा कि आप लोग जो है पहले पैसे सबमिट करवा आए। यहीं पे करीब में एक बैंक है, तो जल्दी से हम लोग वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर बैंक में जाकर हम लोगों ने पैसे सबमिट करवाने थे। आप ही काफी लंबी लाइन जो है वो लगी हुई थी। आप ही वहाँ पर सर ही मौजूद नहीं थे। फिर आप ही मैं दोबारा से सेकंड बैंक में गई हूँ, पर इतनी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि कैसे क्या करना है। अल्लाह ताला से मदद मांगती जा रही थी और अल्लाह पाक से ही कह रही थी कि अल्लाह पाक बस आपने ही मेरे लिए आसानियां करनी है। तकरीबन 3:45 पर जो है मैं उधर पहुंची हूँ और सबसे आप ही लास्ट एंट्री मेरी ही थी उधर। अल्लाह पाक ने मुझे दरूद इब्राहिम पढ़ने से अपनी मदद फरमाई और इस परेशानी के वक्त में मैं यही सोचती जा रही थी कि अल्लाह पाक कितने लोगों के लिए मौजज़ात करते हैं, अल्लाह पाक मेरे इस मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ देंगे। और आपकी वीडियोस को देखने के बाद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहिम को शामिल किया था। और बस फिर आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने उस दिन में मेरी मदद फरमाई और खुद ब खुद सारे काम जो है मेरे हल होते गए, जबकि ना ही मुझे कुछ पता था और ना ही मुझे किसी बारे में नॉलेज थी। बस अल्लाह पाक ने मेरी मदद फरमाई और अल्लाह पाक ने वो मौजिज़ा मेरे लिए किया कि अल्हम्दुलिल्लाह दरूद इब्राहिम पढ़ने से एक ही दिन में और चंद ही मिनटों में जो है मेरा काम हो गया और अल्लाह पाक ने यह मौजिज़ा मेरी ज़िंदगी में किया। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी सेकंड मिरेकल स्टोरी भी शेयर करूंगी जो कि दरूद इब्राहिम से ही रिलेटेड है। थोड़ी सी आप ही कह लें कि उसमें ताख़ीर हो रही है, लेकिन मुझे अल्लाह पाक पर यकीन है कि अल्लाह पाक मेरी दुआ को ज़रूर सुन लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप ही आपकी सब प्यारियों के दिलों की दुआओं को कबूल फरमाएं। आपकी प्यारियों के लिए, आपके लिए, हसनैन के लिए बहुत सारे खूबसूरत मौजिज़ात करें और सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरी मिरेकल स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी की मैं हेल्प कर सकूं और किसी के लिए वसीला बन सकूं। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारियों। देखिए अल्लाह पाक ने कितना प्यारा मौजज़ा इनके लिए किया है, जो कि कहती है कि इनको कुछ पता भी नहीं था दरूद इब्राहिम पढ़ने से कैसे कैसे रास्ते बनाते गए और इनकी मंजिल जो है वो आसान होती गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी दरूद इब्राहिम पढ़ा करें, अल्लाह पाक ने कबूल फरमाना है और अल्लाह पाक की मौजज़ात करने वाले हैं। अल्लाह पाक आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए जो है खूबसूरत मौजज़ात करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी अब जो सेकंड मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ या वदूदो, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको और आपकी प्यारियों को बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाएं और अल्लाह पाक ऐसे ही खूबसूरत मौजज़ात करें जैसे अल्लाह पाक ने मेरी दुआ पर कुन फरमाया है और मेरे लिए मौजज़ा किया है। ऐसा है कि आप ही मैं तकरीबन पिछले 5 सालों से एक इंसान को अपनी दुआ में मांग रही थी और अल्लाह ताला से दुआ करती जा रही थी। तक कहते हैं ना कि जब इंसान के दिल में किसी चीज़ की लगन होती है तो फिर इंसान कहता है कि बस कुछ भी हो जाए, अपनी दुआ को हासिल कर लूँ। लेकिन आप ही मैंने बहुत कुछ किया, मुझे जो जो कुछ बताया जाता था मैंने वो सब कुछ किया। आप ही मैंने सारा सारा दिन, यकीन करें, बैठ बैठ कर इतना कुछ पढ़ा। आप ही बात तो वही है ना जो आप कहती हैं कि जितना भी पढ़ो दिल से पढ़ो। आप ही ऐसा होता था कि उस सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो जाती थी, क्योंकि मुझे कहा जाता था कि इतने से इतने बजे तक ही आप पढ़ सकती हैं, आपने इस तादाद में पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। और ये मामला सब कुछ आप ही मेरी ज़िंदगी में चल रहे थे। जगह आना जाना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं किसी से मिलूँ जुलूंगी तो मैं किस तरीके से अपनी जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट कर सकूंगी। बिल्कुल आप ही ज़िंदगी से कट ऑफ होकर रह गई थी। अब आप ही मुझे लगता था कि बस वही इंसान जो है वही सब कुछ है, अगर मुझे ना मिला तो बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। कि 5 सालों से मैं भटकती भटकती जो है एक दिन बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तहज्जुद के वक्त में अल्लाह ताला से दुआएं कर रही थी कि अल्लाह पाक अब मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मुझे लगता है मेरे लिए हर दरवाज़ा बंद हो गया है। अल्लाह पाक प्लीज़ आप सब कुछ कर दीजिए, मैं अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। मुझे कहा जाता है कि ये करो, ऐसे करो, यहाँ जाओ, मैं हर चीज़ कर चुकी हूँ। अल्लाह पाक आप सब कुछ कर सकते हैं, क्या आप उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं डाल सकते हैं? अल्लाह पाक से आप ही बस ये सारी बातें कर ही रही थी। और ऐसा होता है कि सुबह यूनिवर्सिटी का टाइम था, यूनिवर्सिटी जा रही थी और मेरी दोस्त जो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब आप ही अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा हुआ कि मैं उस दिन यूनिवर्सिटी नहीं गई और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को स्किप किया। और मैं तैयार होती होती जो है अब्बू को ऑफिस जाते हुए मैंने बोला कि अब्बू मुझे जो है आप उसके घर में छोड़ दे, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उसके घर जाकर उसकी तबीयत का मालूम कर लूँ। अब भी मेरे अब्बू ने जाते हुए मुझे वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। वहाँ पर गई हूँ, अपनी दोस्त से मिल रही थी। मेरी दोस्त ने कहा आज यूनिवर्सिटी नहीं गई हो? मैंने कहा नहीं, तुम भी नहीं आई हो, तो मैंने सोचा बस मैं भी आज ऑफ कर लेती हूँ, बस मैं तुम्हारा पता करने यहाँ आ गई हूँ। अब आप ही मैंने अपनी दोस्त के साथ वहाँ पर बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसका ख्याल भी किया, क्योंकि आप ही उसकी कोई बहन नहीं थी और वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब आप ही उसने पहले मुझे कभी भी नहीं बताया कि वो आपके मिरेकल स्टोरीज को सुनती है और कोई ऐसी मिरेकल स्टोरीज भी हैं। अब आप ही वहीं पर बैठे बैठे एकदम से उसने अपने फ़ोन
पर देखा और उसने कहा आ गई नैनू की मम्मा की वीडियो। कहा ये नैनू की मम्मा कौन है, इतनी खुशी के साथ क्यों बोल रही हो। तो आप यकीन करें कि आप ही वो इतनी खुश हो गई थी आपकी नोटिफिकेशन देखकर। उसने मुझे कहा कि तुम्हें नहीं मैंने कभी इस बारे में बताया, तो आज मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये वीडियोस हैं और ये आप ही जो है मिरेकल स्टोरीज को शेयर करती हैं और नैनू इनके बेटे का नाम है, तो इसलिए मैं इनको नैनू की मम्मा ही कहती हूँ और इनसे मेरी इंस्टा पर भी बात होती है। स्टोरी शेयर की थी वो मिरेकल ऑफ या वदूदो से रिलेटेड थी। मैंने उससे पूछा कि इनकी इंस्टा की आईडी क्या है, उसने मुझे इंस्टा की आईडी भी बताई। यूट्यूब के चैनल को भी जो है अपने फोन में भी ऑन कर लिया। बस ऐसा हुआ कि वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी सारी मिरेकल स्टोरीज को सुनती हूँ। अल्लाह पाक ने उस दिन में मेरी दुआ को कबूल करना था और ये सारा मौजिज़ा मेरे लिए उस दिन में अल्लाह पाक ने सोचा हुआ था। ऐसा हुआ कि आप ही जब मैं घर आई हूँ तो रात को जो है मैंने बैठे हुए आपको ऐसे ही मैसेज कर दिया और मैं सोच रही थी कि इतने सारे लोग मैसेजेस करते हैं, ये कहाँ मुझे रिप्लाई देंगी। अल्लाह पाक की तरफ से ही आप उस वक्त में ऑनलाइन थी और आपने मुझे फ़ौरन से जवाब दे दिया कि जी बेटा मुझे वॉइस नोट भेजिए। तो आप ही मुझे आज भी याद है कि मैंने आपको जब वॉइस नोट भेजे और आपने मुझे आंसर दिया और मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं भी या वदूदो जो है पढ़ सकती हूँ। आपको अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताया, आपने कहा जी बिल्कुल आप पढ़ सकती हैं, कबूल अल्लाह पाक ने करना है, जैसे कि आप समझाती हैं आपने वैसे ही मुझे समझाया। मैंने आपको सब कुछ बताया कि मैं इतनी मर्तबा ये सब कुछ पढ़ चुकी हूँ और ऐसे ऐसे पढ़ती रही हूँ, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आपने मुझे कहा कि बेटा जैसा आपका दिल मानता है आप पढ़ लो, अल्लाह पाक का कलाम है और अल्लाह पाक ने ही कबूल करना है। और या वदूदो में तो वैसे ही इतनी मोहब्बत है कि आप जितना पढ़ सकती हो आप पढ़ लो। फिर आप ही अल्लाह पाक का शुक्र और करम है कि आपके उस बताने से मैंने जो है 7 दिनों तक अल्हम्दुलिल्लाह आप ही या वदूदो हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ा ही था और अव्वल आखिर आप ही जितना मर्जी हो सकता था मैं दरूद इब्राहिम पढ़ती थी। ये मैं ऐसा मौजिज़ा किया कि आप ही एक दिन रात को बैठे बैठे जो है मेरे फ़ोन पर उनका मैसेज आता है, जो इंसान आप ही कह लें कि 5 सालों से मुझे छोड़कर जा चुका था और अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप ही उसको उसकी गलतियों का एहसास हुआ और सारी हकीकत उसके सामने आ चुकी थी। अल्लाह पाक ने 7 दिनों में या वदूदो पढ़ने से मेरे लिए प्यारा सा मौजिज़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अभी जो है नेक्स्ट वीक में वो लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं। 7 दिनों में अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को कबूल किया और या वदूदो पढ़ने का वसीला मेरे लिए बना। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और मेरी उस दोस्त को बहुत खुश रखें। आपके चैनल के बारे में मुझे बता दिया। बेशक आप ही अल्लाह पाक मौजिज़ात करते हैं और अल्लाह पाक वसीले बनाते हैं। अल्लाह पाक ने चाहा तो आप ही मैंने जो है या वदूदो पढ़ा, अल्लाह पाक के हुक्म से ही ये सब कुछ हुआ है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे तो यकीन नहीं आता है कि मेरी दुआ ने ऐसे एक लम्हे में कबूल हो जाना था। इतना कुछ कर लिया था कि मैं थक चुकी थी, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे गिरने नहीं दिया और ना ही टूटने दिया। अल्लाह पाक की मदद मेरे लिए आई है और बेशक आपकी प्यारियों को भी बताना चाहूँगी कि अल्लाह पाक की मदद आती है। बस तवक्कल और यकीन के साथ ही अपनी दुआओं को जारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही आपकी वीडियोस जो है मेरी छोटी बहन भी फॉलो करती है और मेरी जो भाभी हैं वो भी फॉलो करती हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारी प्यारी सी मिरेकल स्टोरीज भेजती हैं। तो मुझे यकीन है कि मेरी मिरेकल स्टोरी भी किसी के लिए वसीला बन सकेगी और मैं भी किसी के लिए हिम्मत का ज़रिया बन सकूंगी। आप मेरी मिरेकल स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह आप ही जिस दिन मेरी डेट फाइनल हो जाएगी वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए जैसे अल्लाह पाक ने मेरे लिए मौजिज़ा किया है। अल्लाह पाक आपकी सब प्यारियों के लिए भी ऐसे ही प्यारा खूबसूरत मौजिज़ा करें इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी प्यारी मिरेकल स्टोरी जो है हम तक पहुंचाई है। तो मेरी प्यारी जैसे कि इन्होंने सारा कुछ डिटेल से तो बता दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग भी जो हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए किसी भी सिचुएशन के लिए जो प्यारा सा अल्लाह पाक का नाम है या वदूदो आप लोग भी पढ़ सकती हैं। हर नमाज के बाद पढ़ना चाहें तो जितनी मर्जी मर्तबा पढ़ लें। वैसे ये जो है एक तस्बीह जो है 100 टाइम्स पढ़ा करती थी, आखिर दरूद इब्राहिम आप लोग जितनी मर्जी मर्तबा जो है पढ़ सकती हैं। कबूल अल्लाह पाक ने करना है। अल्लाह पाक हकीकतों को जानते हैं, अल्लाह पाक दिलों की बातों को जानते हैं, अल्लाह पाक आपके मांगने से पहले भी जानते हैं जो आप मांग रही हैं। बस जो वक्त मुकर्रर है ना उस वक्त में अल्लाह पाक ने आपकी दुआ को कबूल करना है। आप बस दुआ जारी रखिए और अल्लाह पाक से मांगते रहें, अल्लाह पाक से ही मदद हासिल करें इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने जैसे इनके लिए मौजिज़ा किया है आप लोगों के लिए भी अल्लाह पाक ज़रूर ज़रूर मौजिज़ात करेंगे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारियों आप सब के लिए हमेशा मेरी दिल से दुआ होती है अल्लाह सुब्हाने व तआला आप सब के लिए खूबसूरत मौजिज़ात करें, सबके दिलों की दुआओं को ख्वाहिशात को अल्लाह पाक कबूल
قبول و منظور فرمائے۔ جو بھائی مجھے سنتے ہیں، جو بہنیں مجھے سنتی ہیں، سب کے دلوں کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک ان بہنوں کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔